go. So big day, folks. The big day is finally here. 20 years hence, we have India versus Australia meeting again for the World Cup finals. This time, we still have Ponting and Ganguly at the stadium, but yeah, they're in the commentary box. We have a Rohit Sharma versus Pat Cummins. India on the trot of 11 consecutive wins, and Australia coming back on the trot of 7 consecutive wins, playing for the World Cup finals at the world's largest stadium in Ahmedabad. Does it get bigger than this? No, I don't really see both the captains under pressure though, which is I guess a good thing. But yeah, for me, the finals are more of a game of uh, keeping a nerve than skills. So yeah, what do you guys feel? It's Hmm. difficult to say what I actually feel today. Dave, It's a big you big game. says a few words, then I'll Yeah, follow. they believe Australia is favorites today though. Yeah. Yeah, yeah. I mean, as I said, Hmm. everyone in cricketing world is saying India will win because of more superior party. But Hmm. this Australia in finals, in knockouts is another chapter altogether. Hmm. Not sure. So, I Yeah. mean, I just, and one more thing, I don't Hmm. want it to be वो वाला गेम की क्रिकेट की जीत हुई या ये हुआ Hmm. ना 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 ठीक है Hmm. अगर नहीं नहीं. होना है तो हैव इट फास्ट Hmm. एंड Yeah. डन क्योंकि ज्यादा लिंगरिंग जो प्रोसेस होती है ना उसके अंदर थोड़ा गड़बड़ रहता है तो Hmm. वो है एंड आई हैव सीन फास्ट किल, क्रेजी आई मीन फास्ट किल करना है, हाँ. Hmm. I just woke up like 15-20 minutes back and TV पे I mean the people have gone crazy. I Hmm. mean अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि like last time in 2011 I was in Bangalore. Hmm. India won the World Cup. My Hmm. roommates they went to Church Street and Hmm. Brigade Road and it was a carnival there. I didn't went there. ठीक है. Hmm. I thought I missed the lifetime opportunity. I Hmm. hope I get that opportunity today and I go and celebrate in the streets with the crowd. Hmm. I hope. नहीं, let's Australia very good points made. Australia in knockouts is a different beast. अब हम बात करते हैं 1975 फाइनल में ऑस्ट्रेलिया खेलती है वेस्ट इंडीज को, एंड इट्स अ क्लाइव लॉयड काउंटर अटैक. मतलब कि उस दिन, उस जमाने में 1975 में क्लाइव लॉयड मेक्स 185 बॉल्स. यान चैपल सेज दैट टोटली थ्रू अस ऑफ. मतलब कि obviously we went as in the मतलब not as favorites. वेस्ट इंडीज ओनली वेर द फेवरेट्स, बट फिर भी हमने बहुत कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेला उस मैच में. और अगर आप देखो तो स्कोरबोर्ड इज रियली क्लोज इन दैट मैच. इवन ऑस्ट्रेलिया प्लेड वेरी अटैकिंग क्रिकेट बाय दोज डेज का स्टैंडर्ड. 1975 फाइनल वाज अ हाई स्कोरिंग मैच. मतलब दैट्स अनबिलीवेबल. बट what the point I'm trying to make is कि you need an extraordinary individual brilliance along with a collective brilliance performance to beat Australia in knockouts. Like Devanshu said, and Kunal, you said it's a game of nerves and it's a game of pressure. Who handles it better? ये प्रेशर Yeah. कैसे And कम होगा? ये प्रेशर अपने आप कम नहीं होने coming वाला है. You need those moments of वाइल्ड ब्रिलियंस. वाइल्ड ब्रिलियंस जो होगा ना, वो इस प्रेशर को हटा देगा पूरी तरह से. और अभी तक वर्ल्ड कप में हमने देखा है कि रोहित शर्मा और मोहम्मद शामी विथ बैट एंड बॉल ये काम कर रहे हैं, जो कि मतलब कि पूरे टीम से वो लोग प्रेशर हटा दे रहे हैं. इनफैक्ट बुमराह मोर देन शामी, मे बी बुमराह ऑल्सो विद द न्यू बॉल, दे हैव बीन डूइंग दिस जॉब. जो प्रेशर हटा दे रहा है पावर प्ले में. वी आर नॉट अलाउिंग द टीम्स टू गेट अहेड, conceding only 50 runs on an average. So that is amazing and good. और मैं बोलना चाहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया हमेशा में, इवन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी, मुझे तो पर्सनली आई फेल्ट इंडिया आर द फेवरेट्स. मुझे ऐसा लगता था मतलब कि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट आई वाज श्योर इंडिया विल लूज, बट व्हेन WTC came I And felt India was favorites. team selection in both WTC final has been an हाँ. issue. That's the हाँ. only challenge. So yeah. बट वो फाइनल हारना कहीं ना कहीं एक थोड़ा इंडिया टीम को अभी करेंटली बैकफुट पे डाल देती है. डेफिनेटली मतलब कि वो लोग भी सोच रहे होंगे. बट इस टूर्नामेंट में अगेन मतलब कि इट डजेंट मैटर आप कितने विंस लेके आए हो. आज का प्रेशर और मेकिंग द राइट डिसीजंस, मेकिंग द राइट कॉल्स, Good word.
बहुत इम्पोर्टेंट है। रोहित रोहित सेड दिस इन हम्म यस्टरडे प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले जो लास्ट 10 मैच जीते, अ, वो अगर आज अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो इट डजेंट मैटर, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। बोले लेकिन अगर यही 10 मैच के साथ अगर आप अच्छा परफॉर्म करोगे फाइनल वाले दिन, तो वो एक अलग लीग में चले जाएंगे वो 10 मैच, विच इज राइट। Agree. Yeah, which is right. इज इज They will win the World Cup anyways, right? Plus, I हाँ, feel, uh, plus, आज India will be under greater pressure than Australia. Honestly speaking, India have ऑब्वियसली much more ऑब्वियसली। expectations, big crowd, you know, so many expectations already. Aussies, they've been there so many times. They're like, कि हाँ, एक और final खेल रहे हैं हम. हाँ, अब look, India has hosted like only in India three World Cups: 87, 2011, and this is the third one, 2023. 1996 was, in fact, 2011 was also Subcontinent. co-hosted, but the final was in 87. India. Yeah. Finals was in India. So Australia played 1987 final in Kolkata again, हम्म 90,000 people, and हम्म everyone supported Australia in that because हम्म England beat India in the semi-final in 87. हम्म So that is why everyone was supporting हम्म Australia हम्म in Eden Gardens. So that what you say? Um, Pat Cummins was saying yesterday that it's always good to silence 130,000 people. I हम्म mean, they will breathe, man. It will still make noise. नहीं, So 1,30,000 पीपल को आप साइलेंस तो कर दोगे, लेकिन जब वो इंडिया विल बी ऑन द टॉप ऑफ द गेम ना, तो 1,30,000 का आवाज, ऑस्ट्रेलिया अगर एक मिस्टेक करती है ना तो वो दूसरी मिस्टेक भी करवा देगा वो 1,30,000 का क्राउड, क्योंकि क्राउड प्लेज अ बिग फैक्टर एक्चुअली। इफ यू सी दैट डॉक्यूमेंट्री बिलीव, जहाँ पे विराट कोहली ने वो पाकिस्तान वाले इनिंग्स के बारे में बात की है जो उसने एमसीजी में खेला था, तो ही सेड कि कोविड में आई वाज फीलिंग सो डीमोटिवेटेड, मतलब मुझे मन ही नहीं करता था क्रिकेट खेलने का, या बिकॉज आई गेट फायर्ड अप बाय द क्राउड, आई प्ले फॉर द ऑडियंस हु कम टू द ग्राउंड। वो ऐसा बोल रहा था, तो इट रियली एड्स, मतलब कि जब उसने वो दो हारिस राव को पहला छक्का मारा, तो वो बोला कि जो नॉइज लेवल था, मतलब कि ही फेल्ट नाउ इट्स इंडियाज गेम। मतलब कि क्राउड से आपको एक इंडिकेटर भी होता है ना कि आप कहाँ पे हो, आप कहाँ जा रहे हो, वो चीज मतलब कि क्राउड आपको देती है। और ऑस्ट्रेलिया विल बी अंडर द पंप इतना ही बड़े क्राउड के सामने, जब आपका कोई गाना नहीं बजेगा, आपका वैसे भी ऑस्ट्रेलिया के तो कोई गाने ही नहीं है तो यू विल बी अंडर द पंप, इट विल बी एक वेरी चीज है, डिफिकल्ट। शिखर, लाइक इट वाज, वो भी ये बोल रहे थे ना कि मिस्टेक्स हो, 2-3 मिस्टेक इंडिया करे तो देयर इज अ चांस कि ऑस्ट्रेलिया कैन मेक अ कमबैक। मैं मतलब लाइक, दो आई एम पुटिंग ऑस्ट्रेलिया इन फ्रंट इन द फाइनल, बट ऑब्वियसली इंडिया इज प्लेइंग वेरी वेल। मुझे ऐसा लगता है कि दिस गेम विल बी डिसाइडेड बाय रन आउट इन एनी वे, I क्योंकि क्या I होगा really कि nostalgic about नहीं, last बिकॉज ऑफ World Cup दिस, run out. बिकॉज ऑफ दिस क्राउड थिंग, हम्म calling and everything needs to be very precise. And हम्म against spinners, कुलदीप एंड क्या नाम है अपना उसका, जड्डू, वो क्या प्रेशर इतना क्रिएट हो जाता है कि रनिंग बिटवीन द विकेट बिकम्स ऑल ओवर द प्लेस। तो हम्म वो एक सिनेरियो है जो ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज देखो वो खुद भी हम्म बहुत ज्यादा प्रेशर में है। हम्म एज वी हैव डन इन्यूमरेबल रिव्यूज, ओवरव्यूज, हम्म टच अप ऑन दिस, उनको इतना डर है कि हम कलेप्स नहीं कर जाएं, कि उनका पूरा हम्म गेम ही चेंज हो जाता है 10 ओवर के बाद। हम्म उनका मेन एम ये रहता है कि ग्लेन मैक्सवेल 30 ओवर से पहले बैटिंग करने नहीं आ जाए, तो वो हम्म इस चक्कर में इतने स्लो हो जाते हैं कि वो सब हम्म कुछ अपना गेम चेंज कर देते हैं। हम्म ठीक है, कर लो भाई। बट अभी क्या मतलब, वेरी गुड पॉइंट एक्चुअली रेज, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया के गेम में प्लान में एक ग्लेयरिंग वीकनेस है, मतलब कि 10 ओवर के बाद उनको उनका कोई आइडिया नहीं है। कल विष्णु ने वो कुछ स्लाइड्स दिखाए थे, तो उसमें भी आया था कि ऑस्ट्रेलिया मतलब कि स्कोर्स एट अ रन रेट ऑफ 5.8 फ्रॉम 11 टू 40 ओवर्स, और 4 विकेट खो जाते हैं, मतलब कि अगर वो लोग 2 विकेट पावर प्ले में खोते हैं तो 6 विकेट उनके डाउन हो जाते हैं बाय द टाइम दे रीच द डेथ ओवर्स, जिसके वजह से उनका जो इम्पैक्ट है डेथ ओवर में वो बहुत कम है। मतलब हाँ ठीक है, कमिंस कभी आके मार दिया, कभी कुछ, वो डेप्थ है उनके बैटिंग में, नो डाउट,
बट उनका इम्पैक्ट कम हो जाता है, मतलब कि लाइक वी सॉ इन नेदरलैंड्स गेम जहां पे मैक्सवेल स्कोर्ड 100 इन द लास्ट 10 ओवर्स इटसेल्फ। तो नॉर्मली मैक्सवेल अगर रहे तो बहुत रन बन सकते हैं, बट मैक्सवेल कभी रहता नहीं है क्योंकि वो आउट हो चुका होता है, क्योंकि ये लोग का एक मिनी कोलैप्स जो है वो हमेशा होता है। तो व्हाट शुड ऑस्ट्रेलिया डू नाउ? आई एम टॉकिंग फ्रॉम एन ऑस्ट्रेलियन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो व्हाट कैन ऑस्ट्रेलिया डू, मतलब कि इस चीज को रोकने के लिए क्या कोई वे आउट है, मतलब ऑस्ट्रेलिया के लिए टू टू स्टॉप दिस कोलैप्स? मतलब विराट, हम देखते हैं विराट इंडिया को एंकर करता है, तो क्या एंकरिंग इज द आंसर, और दे शुड जस्ट गो ऑन प्लेइंग लाइक डेविड वार्नर और मिचेल मार्श ने खेला था पाकिस्तान के अगेंस्ट, कि भाई 30 ओवर में ही उन्होंने 220 230 रन बना लिए थे 30 ओवर में ही। उसके बाद फिर कोलैप्स किए, लेकिन वो कोलैप्स का कोई इमटेरियल था क्योंकि ऑलरेडी इतने रन बोर्ड पे बन चुके थे। रन बन गए थे। हम्म Maybe Australia, then you take a more cautious approach. Maybe they can have a Warner play like and thoda anchor innings just get around the team can maybe bat a little bit. They have Labuschagne as well, but they are really lacking in the firepower towards the end. अब वो लोग स्पेनिश को भी नहीं खिला रहे, right? And Labuschagne is not like a hit and out and out hitter. तो थोड़ी फायर पावर भी उनकी कम हो ही जाती है. तो they need like I guess David Warner to play an anchor innings and they need Travis Head to go big. And maybe they can promote Josh English maybe just As I score said, some runs at a fast pace. ये लोग इतना वरीड हैं कोलैप्स को लेके कि दे आर लाइक bolstering their batting and now they are playing only with 3.5 bowlers, क्योंकि जैम्पा ने 22 विकेट्स लिए वर्ल्ड कप में, बट द पॉइंट इज दिस, ही इज स्टिल इन पंप, अंडर पंप। उसको लग रहा है कि मैं कभी भी बहुत ज्यादा रन दे सकता हूँ, वो दे चुका है इसी वर्ल्ड कप के अंदर। तो कंसिडरिंग वो सब यही बोल, कल डीके का शो देख रहा था, डीके आल्सो सेड द सेम थिंग कि बोले दो आई प्रेडिक्ट जैम्पा टू परफॉर्म बेटर इन फाइनल्स, बोले लेकिन द पॉइंट इज दिस कि अगर जैम्पा, जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैम्पा को अगर मार पड़ गई, उनके पास प्लान नहीं है कि क्या करें। बोले क्योंकि जैसे मैक्सवेल और हेड ने बॉलिंग करी है बाकी टीम्स के अगेंस्ट, मुझे नहीं लगता वो उसकी की लाइन थी, मुझे नहीं लगता कि अय्यर उनको बच के जाने देगा यहाँ से। तो वो बट ऑस्ट्रेलिया को क्या सिनेरियो, करना चाहिए कोलैप्स रोकने के लिए? ऑस्ट्रेलिया को क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? यार मुझे ऐसा लगता है डर, फियर क्यों करना, बिकॉज दे आर ऑस्ट्रेलियंस, माइटी ऑस्ट्रेलियंस, क्या होगा Yeah. उनको डरने से? दे नीड टू हम्म प्ले अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। एंड ऐसा नहीं है कि, देखो फैक्ट है, ऑस्ट्रेलिया का गेम दे ऑल्सो नो कि अगेंस्ट स्पिन इज नॉट गुड। तो और इंडिया के तो स्पिन 20 ओवर तो आने ही आने, देयर इज नो चांस कि भाई वो कहीं पे हट जाएंगे। अब उनको राइट 20 ओवर को प्लान करना है कि भाई हम उसमें 100 रन बनाए, हम उसमें 120 रन बनाए, या हम 80 रन बनाए, बट एटलीस्ट देयर इज अ फिगर होना चाहिए। 80 बना चाहिए तो इट्स लाइक कितना हो गया उनका 4 का रन रेट, विच अगेन प्रूव्स आवर पॉइंट कि दे आर प्लेइंग स्लोली। So they need to at least make 120 runs, and how they will make, they will know, because number 3 to number 7 Australian batting lineup is right-handed batsman. उनके लेफ्ट हैंडेड है ही नहीं बीच के अंदर, हमारे तो है ही नहीं, उनके बीच में नहीं है, तो वो उनका पूरा सिनेरियो चेंज हो जाता है उसके अंदर। और उनके पास जो प्लेयर्स भी है ना, मतलब जैसे नंबर 3 पे मिचेल मार्श है। नाउ द प्रॉब्लम इज इंडियाज नंबर 3 इज विराट, विराट बट कोहली, बट मिचेल मार्श लगता है वो नंबर 3 जैसा लगता ही नहीं है, मतलब कि वो मोर ऑफ एन ओपनर, ओपनिंग बैट्समैन को ही ऐड ऑन करता है। ऐसा लगता है कि हिज रोल इज आल्सो लाइक एन ओपनर, कि मतलब कोई ओपनर आउट हुआ तो उसको भी जाके ये आके फिर मारना शुरू कर देता है। और गुड पॉइंट शिखर। हाँ एक्चुअली में इफ यू सी मिशेल मार्श के इस वर्ल्ड कप में जितने भी मैच में उसमें रन बनाए, कोई ओपनर जल्दी आउट हुआ है वो जल्दी आ गया। जिस हाँ मैच में वो लेट आया है, उसकी बिल्कुल वाट लग गई, उसको समझ उसकी में नहीं वाट आया लग क्या गई, करना है। उसकी वाट लग गई पूरी तरह। जिस मैच में वो और लेट आया है एनीवेज उसके, ओपनिंग ही कर रहा था, राइट? हाँ ट्रेविस हेड पहले ओपनिंग ही कर रहा था, उसने बहुत एक्चुअली मैचेस ओपन किया ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया के। प्रॉब्लम ही इज ऑफ एन प्लेंटी, ओपनर। एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया फंस गई प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी में। मैं बताता हूँ कैसे। क्योंकि इनको एक्चुअली बहुत ज्यादा इनके, मतलब मिचेल मार्श ने अच्छा परफॉर्म किया है थ्रू आउट, और जब हेड वापस आया तो ये समझ नहीं पाए कि मिचेल मार्श को ओपनर कंटिन्यू करना है या फिर अब हेड को खिलाना है। बट ऑब्वियसली इन्होंने हेड में इतना इन्वेस्ट किया हुआ था और उसके वजह से इन्होंने काफी प्लेयर्स छोड़े हुए थे इनफॉर्म प्लेयर पीछे। था। तो यूर ऑन म्यूट शिखर। हाँ, तो इसलिए उन्होंने हेड को रखा रहा। बट द पॉइंट इज अभी की
Mitchell Marsh doesn't know how to play spin. Point one is he doesn't know how to play spin. I don't think he can survive 5 to 6 overs of Kuldeep and Jadeja. He cannot survive with, even if he survives, he'll be very defensive. अगर वो मतलब कि हाँ 10-20 के स्ट्राइक रेट से खेलेगा तो शायद सर्वाइव कर जाए, बट मतलब कि ही विल नॉट सर्वाइव. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है स्टीवन स्मिथ और मार्नस लाबुशेन में. नाउ दीज आर टू एंकर्स. ये दो एंकर्स ही है. इनको ओडीआई गेम में जो टेस्ट ओडीआई पोर्शन जो बोलते हैं, टेस्ट से ओडीआई के बीच वाला जो फेज ऑफ द गेम है, वो खेलने के लिए रखा गया है स्टीव स्मिथ और लाबुशेन को. अभी डिपेंड करता है ये दोनों कितना अच्छा रोटेट करते हैं और कितना बीच बीच में अगर बिग शॉट्स मार पाते हैं या नहीं. तभी ऑस्ट्रेलिया के वो 20 ओवर में 120 रन बनेंगे या 20 ओवर में 100 रन भी बनेंगे. नहीं तो नहीं बन पाएंगे ऑस्ट्रेलिया के 20 ओवर में 100 रन. दिस इज ऑल वी आर कंसिडरिंग कि हेड आउट हो जाए, वार्नर आउट हो जाए. तब अगर हेड और वार्नर चलते गए तो वो लोग अटैकिंग क्रिकेट खेलते रहेंगे. फिर वो लोग 30 ओवर में 250 बजा देंगे. मतलब ऐसा करते हैं. तो ये उनका एक बहुत बड़ा वीकनेस है. मिचेल मार्श एट नंबर 3, स्टीव स्मिथ एट 4 इज वोफुली आउट ऑफ फॉर्म. लाबुशेन इज डूइंग ओके जॉब, बट ही लुक्स बिट ओवर कॉन्फिडेंट कि मैं तो स्पिन खेल लूंगा, मैं तो मार लूंगा. शामसी को अगेंस्ट द टर्न मारूंगा, महाराज को अगेंस्ट द टर्न मारूंगा, रिवर्स स्वीप खेलूंगा जैसा मेरा मन है. मतलब एक इनिंग्स आदिल रशीद के अगेंस्ट उसने जो खेला और एक साउथ अफ्रीका में इनिंग्स जो उसने 2 सेंचुरीज मारे हैं साउथ अफ्रीका में, उन 2 नॉक्स के बाद आई थिंक ही इज बिकम अ बिट ओवर कॉन्फिडेंट ऑन हिज क्रिकेटिंग स्किल्स. ही इज अ वेरी गुड क्रिकेटर, नो डाउट. वो एक बात 24. और है शिखर, जस्ट टू ऐड टू योर पॉइंट, या जिसमें तो लाबुशाने है वो जो टेस्ट फेज है ओडीआई का, तो मैंने बोला था ना कि वो नहीं चाहते कि 30 ओवर से पहले मैक्सवेल आ जाए बैटिंग करने, तो हाँ इसलिए वो लोग बहुत ज्यादा वैसे ही मोड में चले जाते हैं कि उसके लिए. या यू कैन कैरी ऑन. हाँ मैक्सवेल वो तो है ही. और वो लोग सोचते हैं कि भाई हम किसी भी तरह पहले 10 में मार लें और आखिरी 10 में मैक्सवेल मार ले और हो जाएगा हमारा काम. बट और दूसरी बात है इंग्लिश के बारे में भी, जैसा कुणाल ने बोला कि इंग्लिश को प्रमोट करना चाहिए. तो भाई इस बंदे के ये ऐसा एक बंदा है जिसपे मुझे मुझे आज तक समझ नहीं आया कि ये क्या है और क्यों है. हाँ, इस साइड बट में दे आर क्या प्लेइंग हिम कर. राइट. वो नहीं खिला रहे एलेक्स कैरी को. अब तो नहीं खिला रहे, डेफिनेटली नहीं So खिला रहे. जब might as well use Josh मुझे Ingles को. इनफैक्ट लग रहा था कि सेमीफाइनल तक मुझे होप था कि ये लोग एलेक्स कैरी को खिला लेंगे क्योंकि इंग्लिश वाज फ्लॉपिंग बिग टाइम. बट अब जैसे 137 फॉर 5 से आके इंग्लिश ने अच्छा फुटवर्क दिखाया स्पिन के अगेंस्ट. इनफैक्ट मुझे लगता है उसने काफी अच्छा खेला. शामसी को अच्छा खेला, कोइट्जी को अच्छा खेला. फिर वो अनफॉर्चुनेटली मतलब कोइट्जी का अच्छा बॉल पे आउट हो गया. तो उसने वो इनिंग्स, वो जब आउट हुआ तब ऑस्ट्रेलिया को 18 रन रह गए थे, 20 रन रह गए थे जीतने के लिए. जबकि उन्हें स्टार्टिंग में उससे पहले मतलब कि 76 जरूरत था. तो उसने ऑलमोस्ट पूरा ही खत्म कर दिया एक तरह से टारगेट. तो दैट वाज अ गुड इनिंग्स. बट आई एम येट टू सी द जॉस इंग्लिश दैट वी हैव हर्ड इन T20 क्रिकेट. मतलब कि मैंने कभी देखा नहीं है एक्चुअली आज तक उसे मारते हुए. बट वो ओपनिंग करता है. वो ओपनिंग करता वो है और वो ओपन T20 लीग्स में मारता है, बीबीएल में मारता है, वो 100 में वो मारता है. और उसको रखते हैं, मतलब कि सारे टीम्स रखते भी हैं उसको. तो ऑस्ट्रेलियन T20 टीम में भी आ गया था वो. तो आई डोंट नो, आई हैव नॉट सीन दैट साइड ऑफ हिम इन दिस वर्ल्ड कप. बट या इट मे कम टुडे, यू नेवर नो. मतलब ऐसा भी हो सकता है. बट या मैक्सवेल एंड इंग्लिश पे डिपेंडेंट है वो लोग. और डेप्थ के बारे में देवांशु भाई, आप कुणाल, व्हाट डू यू से ऑस्ट्रेलियन बैटिंग डेप्थ. नाउ इंडिया का हमें सब पता है कि नंबर 4 नंबर 11 से हमारे बेसिकली. तो do you think that makes a difference? A lot of people are commenting on that. It has not made a difference till now actually, but do you think it makes a it, difference मतलब कि for I India? think having Pat Cummins in their tail does make a difference. Pat Cummins, I mean, is a batsman जो देख के खेल सकता है अच्छे से. He can keep one end together and maybe he can hit some shots as well. Pat Cummins की बैटिंग ने उस मैच में डिफरेंस बनाया था, right? मैक्सवेल वाले मैच में. I mean, how he kept the hold at the other end. उसके अलावा I About don't that, think we can expect much from other players, but having Pat Cummins does give some cushion to बाकी players also कि but थोड़ा they can but Pat go Cummins for के the ऊपर ball. about स्टार that, आता है. That is the funniest thing. If you see Yeah, Australian maybe they send Stark on purpose कि Stark एक दो shots मार ले because Pat Cummins will not try to do that. Pat Cummins will दे save the wickets. वो Maybe. स्टार्क को भेजने का रीजन है लेफ्टी इंट्रोड्यूस करना
बिटवीन राइट हैंडर्स, इसलिए हम्म उसको भेजते हैं स्टार्क को। नहीं, और देखो डेप्थ का तो खेल, अगेन मैचअप्स वाली बात हो गई शिखर, ये पूरा कि हम्म मैचअप्स उसके साथ, तो इस वर्ल्ड कप ने अगर कुछ सिखाया तो ये है कि मैचअप तो आर ओवररेटेड। हम्म तो अभी जैसे कि आप, WTC में भी ये था कि प्ले योर बेस्ट बैट्समैन, प्ले योर हम्म बेस्ट बॉलर्स। हम्म, भी इंडिया वही कर रही है कि योर प्ले हाँ बेस्ट बॉलर्स और प्ले बेस्ट बैट्समैन। ऑस्ट्रेलिया, दे आर नॉट प्लेइंग देयर बेस्ट बैट्समैन इन देयर हम्म प्लेइंग 11। दे आर, अभी कौन? जैसे बात करी कि दे आर, यार स्टोइनिस, भाई स्टोइनिस और आप स्टॉइनिस। लबुशाने में कैसे कंपेयर कर सकते हो यार? वो एंड में अगर 7वें नंबर पे स्टोइनिस आ रहा है और एक जॉश हम्म इंग्लिश आ रहा है, तो अपोजिशन टीम किसको चाहेगी कि कौन आए कौन नहीं आए? हम्म देयर इज अ रीजन फॉर दैट। तो वो वो वाला सिचुएशन है। तो डेप्थ के लिए तो मैं तो ठीक है, देखो जो है सो है, यही है, इसी तो में आप जीतना बोल है, रहे हो कि ये मतलब कि खेलते अगर हैं। स्टॉइनिस रहता जॉस इंग्लिश की जगह तो मतलब ऑस्ट्रेलियन टीम वुड हैव लब बीन डिफरेंट। लबुशन है, लबुशेन लबुशन है। की जगह स्टॉइनिस रहता, लबुशेन, अच्छा। तो मतलब जब कैसे आप पता नहीं, मतलब, आई डोंट, so लेकिन ऐसा Sonis was होगा not in नहीं। form then, नहीं and उनका ऐसा मिड नहीं ऑर्डर ऑलरेडी बहुत वीक होगा चल रहा था, they नहीं needed Labuschagne। भाई, इनका तो कोलैप्स हो रहा है ना, ये स्टॉइनिस के हाँ। साथ क्या करेंगे, इनका तो कोलैप्स ही हो रहा है ना। मतलब और एक मैक्सवेल ऑलरेडी है बैकएंड में, और कमिंस है, मतलब तो मुझे नहीं लग इनका डर तो कोलैप्स का है, इसलिए ये लोग लाबुशेन को खिला रहे हैं, क्योंकि ये लोग भी डर रहे हैं। इनको पता है मिचेल मार्श इज यूजलेस। बेसिकली दे नो, दे आर जस्ट टेकिंग अ बेट ऑन मिचेल मार्श, दे आर टेकिंग अ बिग बेट ऑन मिचेल मार्श कि वो भाई कुछ तूफानी कर दे। और जैसा वो उसने एशेस में एक नॉक खेला था, जो आउट ऑफ नोवेयर अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले, मतलब कि ऐसा नॉक कुछ आ जाए। अफगानिस्तान के अगेंस्ट भी उसने ट्राई किया था मतलब एक्चुअली काउंटर अटैक कर दिया था उसने अफगानिस्तान को। तो ऐसे दो तीन वो इंपॉर्टेंट कैमियोज खेल सकते हैं मिचेल मार्श, बट कोलैप्स तो लाबुशेन इज मोर इक्विप्ड टू हैंडल देन स्टॉइनिस, क्योंकि स्टॉइनिस का प्रॉब्लम है, ही इज नॉट गुड अगेंस्ट स्पिन। उस दिन भी लिविंगस्टन को वो 2-3 छक्के मारने गया तो लिविंगस्टन ने उसको पकड़ ही लिया, मतलब कि वो उस दिन वो अच्छा खेल रहा था स्टॉइनिस। आई आई वाज रियली होपिंग कि स्टॉइनिस उस दिन 60-70 मार दे और अपना पोजीशन सील कर दे, बट वो लिविंगस्टन के पीछे ही पड़ गया और उसने मतलब डीप में कैच हो गया वो। एक चीज और है, लाइक मार्क, मैन टू मैन अगर डेप्थ की बात की जाए, द ओनली हम्म थिंग इज स्काई। स्काई को क्या इतनी अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली जब एक्चुअली से वो स्काई के खेल बारे रहा है में हमने अच्छा। बात ही नहीं किया इस टूर्नामेंट में, बिल्कुल भी बात ही नहीं किया है स्काई के तो बारे में। जैसे कल रात को मैंने पूछा था ना, लास्ट वीडियो गेम इनिंग्स कब हुई थी, बिकॉज आई हम्म वांटेड टू सी व्हाट ही डिड। सो इट वाज 72 नॉट हम्म आउट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन इंदौर, लाइक अ हम्म मंथ बैक इटसेल्फ, 2 मंथ्स बैक इटसेल्फ, हम्म जहां से ये हुआ था कि अब स्काई स्क्वाड में रहेगा। दैट हम्म वाज द फिक्स थिंग कि भाई अब ये बाहर नहीं जाएगा। तो दैट वाज द हम्म लास्ट इनिंग जो कि उसने 32 बॉल्स या 33 बॉल में 72 रन बनाए थे। अभी डेंजरस जैसे लोग बोलते हैं मैक्सवेल बहुत डेंजरस है, ये सब डेंजरस है, तो स्काई भी इक्वली डेंजरस है। देयर इज नो, मतलब डिनाइंग दैट फैक्ट। तो Sky made his पहले, ODI T20 debut, I think, on this ground. And the first ball he faced, यस, he put it जोफ्रा away for आर्चर। For the six six। from Jofra Archer. हम्म तो he will have हम्म good memories of this ground, I think. मतलब कि स्काई ने स्काई के लिए ये आइडियल पिच है, मतलब कि अगर इस, क्योंकि ये ग्राउंड एक्चुअली बड़ा है स्टेडियम कैपेसिटी के हिसाब से, बट एक्चुअली बाउंड्रीज छोटे हैं। तो स्काई विल बी, आई थिंक, कुणाल, यू आर अ लॉन्ग टाइम स्काई फैन, तो या वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू अबाउट हिज इम्पैक्ट। Yeah, well, Sky तक बात गई नहीं, right? मतलब we have had Shreyas Iyer doing such a good job. We never needed Sky अभी तक। I mean, I'm not sure against the Aussie batting lineup how good Sky might be. It's a pressure game anyways. I He would made a rate he made Maxwell a to be crucial much, 49 in that versus England. He इंग्लैंड। made a against crucial, England, that yes. was a crucial innings, मतलब कि अभी कॉन्टेक्स्ट में देखो तो वो कुशन थोड़ा और उसने बढ़ा दिया, जो कि कम हो सकता था, मतलब लेस देन 200 हो सकता था इंडिया का टोटल उस दिन। तो he can play that good innings on a tough pitch also, उसने ये भी बताया। तो भाई इजी पिच पे वीडियो गेम आ जाए, बस आज आज वीडियो गेम आ अच्छा ही जाए मिलेगा। तो मजा आ जाए, मतलब भाई यार स्वीप देखो वीप। बैटिंग, स्काई की बैटिंग की मुझे तो ऐसा लगता है कि स्काई की बैटिंग की जरूरत पड़ेगी आज फाइनल में। तो मैं तो चाहता हूँ एक वीडियो गेम इनिंग कि मतलब आपको समझ में ही नहीं आए कि क्या चल रहा है।
हाँ वैसा वाला। ऑस्ट्रेलिया की डेथ बॉलिंग ऐसे भी वीक चल रही है, ऐसे ही बस ऑस्ट्रेलिया की कैन डेथ स्टिल बॉलिंग कम एंड वैसे भी स्कोर खराब है। और जब 70-80 रन आराम से। राशिद खान आपको इतने रन्स मार सकता है, मतलब मिचेल मार्श को तो वो आड़ा टेढ़ा कैसे भी मार रहा था, ठीक है, तो दैट सॉरी वाज मिचेल स्टार्क को तो स्टार्क को जब उसने ऐसा अटैक किया था भाई, स्टार्क, कमिंस, ऑल दिस गाइज वर क्लूलेस कि हम क्या करें इस सिचुएशन में। तो आई थिंक जब स्काई मारेगा तो वो तो राशिद खान का 10 टाइम्स प्लेयर है, मतलब और विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू राशिद खान बैटिंग, तो बैटिंग में। हाँ बैटिंग में वो बहुत अच्छा प्लेयर है, तो आई थिंक ही कैन रियली टेक ऑस्ट्रेलिया अंडर द सीज। वो जो डेथ ओवर्स होगा उसमें स्काई का आना जरूरी है। और सबसे एक्चुअली बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि नाउ दैट केएल राहुल हैज मेड दैट 100 अगेंस्ट नेदरलैंड्स, अभी अब टीम मैनेजमेंट और उस दिन भी आके उसने थोड़ा स्लो स्टार्ट था, 15 ऑफ 15 उसने कवर अप कर लिया, 39 ऑफ 20 मार दिया उस दिन, 35 ऑफ 20 या जो भी था उसने मार 39 ऑफ दिया। 20। हाँ 39 ऑफ 20। तो प्रॉब्लम क्या होगा, अभी टीम मैनेजमेंट इज थिंकिंग कि केएल भी मार रहा है और केएल बहुत अच्छे फॉर्म में है, तो वो ब्लॉक कर रहे हैं वो लोग स्काई को। एक्चुअली मतलब क्या कर रहे हैं वो लोग, बोल रहे हैं कि अब उस दिन अगर 40, मतलब सेमीफाइनल था वो, और उस दिन भी अगर 40 ओवर में आया था राइट केल, मतलब लास्ट 10 ओवर्स के लिए आया था वो। 43 43 में अगर केएल आ रहा है देन मतलब क्या, तुम स्काई को मतलब क्या देना चाहते हो, कितने बॉल देना चाहते हो, इतने बड़े इम्पैक्टफुल प्लेयर, मतलब वर्ल्ड के इम्पैक्टफुल प्लेयर जो स्टार्क, कमिंस और हेजलवुड को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उस प्लेयर को तुम क्या दे रहे हो तुम भाई। वानखेड़े में जहाँ पे हमें पता था कि 300 प्लस चेज हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, वहां पे भी तुमने केएल को भेजा। एंड टू बी ऑनेस्ट, आप केएल का बहुत तारीफ करते हो देवांशु भाई, मुझे पता है, ठीक है, आप केएल मतलब ठीक है, बट यार उस पोजीशन से स्काई ना 60 ऑफ 20 मार सकता था, जहाँ पे केएल और 39 ऑफ 20 मारा सही बात। वो। और लकीली हम जीत गए वो मैच, और हम प्रेशर में आए थे उस मैच में, मतलब वैसे हम बहुत आगे ही थे, बट स्काई का इम्पैक्ट यार कैसे, मतलब आई होप द टीम रियलाइजेस यू कि सेड 20 केएल हाँ मेड 20 balls 39 runs राइट। हाँ 39 runs 20 balls। उसी 20 balls के अंदर स्काई वुड हैव मेड 55। ये मैं हम्म श्योर हूँ कि स्काई हम्म 55 बना सकता था। तो दैट्स अ डिफरेंस। अब ये क्या है यार इन लोगों का, मुझे समझ में नहीं नहीं, आता अभी कि क्या। केएल ने लास्ट 5 बॉल में ही एक्चुअली मार दिया 24 रन, या ऐसा वो 15 ऑफ 15 ऐसा कुछ था, मतलब ही हार्ट वाज ही। स्लो था उसका। यार हाँ केएल केएल को उसके ससुर जी भी एक्नॉलेज नहीं कर रहे यार। प्रॉब्लम ये हो रही है। दैट्स द प्रॉब्लम हैपनिंग विद हिम। maybe India should manage KL and Sky better थोड़ा, let's see, भाई केएल इज leave अ it वेरी inside इंपॉर्टेंट प्लेयर, नो Sky. डाउट। अगर अगर 2-3 They have विकेट different जल्दी गिर roles, right? जाते हैं तो KL and Sky. ही कैन अब्सॉर्ब द आई प्रेशर थिंक ब्यूटीफुल। मेरी रीजनिंग ये है कि वो केएल को स्काई से पहले क्यों भेजते हैं, क्योंकि स्काई तो फिर भी आके लास्ट के अगर जैसे 15 बॉल्स ही बची तो ही कैन कंट्रीब्यूट इन दैट 15 बॉल। लेकिन अगर केएल लास्ट 15 बॉल्स में आएगा तो देयर माइट बी अ सिनेरियो कि वो इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए जो वो शायद 43rd ओवर में आके कर रहा है। दैट्स द तो ओनली रीजन। जडेजा को भेज दो ना लास्ट 15 बॉल्स में, कोई भी है, मतलब लास्ट 15 बॉल्स में वही एनीवे खेलेगा जो मेन बैट्समैन है। जैसे उस दिन श्रेयस अय्यर को वो एल्बो में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, वरना वरना एक्चुअली श्रेयस ही खेलता मोस्ट ऑफ दोस बॉल्स, बट वो केएल को स्ट्राइक दे रहा था और केएल उसको वापस स्ट्राइक दे रहा था, मतलब यही गेम चल रहा था कुछ 2-3 ओवर तो, ठीक है, ये 43rd एक ओवर में। दूसरे को स्ट्राइक दे रहे थे डेथ ओवर्स में ही, मतलब ये लोग सिंगल सिंगल ले रहे, डबल भी वो लोग ट्राई नहीं कर रहे थे एक्चुअली, बहुत जगह तो मतलब गैप्स में मार के आराम से 2 रन था, बट वो लोग सिंगल ही ले रहे थे क्योंकि सब थक चुके थे, और मुंबई का ह्यूमिडिटी के, इतना मतलब केएल भी लाइक मैं नॉट आउट जाऊंगा, तू अपना देख ले भाई। मैं नॉट आउट जाऊंगा। हाँ मेरा तो वो एवरेज है। बढ़ेगा वही तो। हाँ। बट द पॉइंट इज कि स्काई का अंडर यूटिलाइजेशन हुआ है, और यस यस। फाइनल में आई होप कि कुछ सरप्राइज करे ये लोग, मतलब स्काई को बीच में कभी अगर स्लो डाउन हो नहीं जाए नहीं नहीं, चीजें तो। कुछ कुछ नहीं होगा। रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप चालू पहले होने से पहले बोल दिया, बोले हम लोग वो नहीं करते कि नंबर 7 वाला 3rd पर आ रहा है बैटिंग करने, 4th वाले हम्म को 7 पे बैठ रहे हैं। बोले हमारे जो रोल डिफाइंड है लोग वही करेंगे, और बोले हम्म हमें विश्वास है वो करेंगे। ठीक है भाई यार। अरे अरे ये लोग पैनिक भी बहुत जल्दी करते हैं, ऐसा नहीं है अभी। आप देखो अगर ऐसा हो कि जैम्पा 2-3 विकेट ले ले टॉप ऑर्डर के,
तो भाई हो सकता है ये लोग जडेजा को भेज देंगे खेलने के लिए कि जडेजा ही आएगा, हाँ जडेजा ही आएगा उस समय, हाँ। ठीक है। दैट्स द रीजन, क्योंकि हम्म, मतलब मैं तो हमेशा से चाहता हूँ कि जडेजा ऊपर आए, हम्म, फाइनल है जो चाहे वो करें, क्योंकि पहुंच गए वो, हम्म, तो इसलिए। हम्म, हम्म। जो करेंगे। तो that's it I व्हाट एल्स think. गाइस? Anything else we have अरे not talked द about. फनियर थिंग बिफोर वी एंड, सो हम्म, आज वर्ल्ड कप में फेलिसिटेशन होगा सारे वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन्स का। ओनली इमरान खान इज मिसिंग, सो दैट वो तो फरीद जेल में है। खान, दैट रिपोर्टर, ही सेड दैट ऑल विल बी प्रेजेंट, इमरान खान विल नॉट बी अवेलेबल ड्यू टू पर्सनल कमिटमेंट। लोग बोल रहे हैं उसे इम्प्रीजमेंट कहते हैं, कमिटमेंट नहीं। तो धोनी भी आएगा क्या? हाँ धोनी इज हाँ, देयर, सारे कैप्टन आ रहे हैं। अच्छा सारे धोनी कैप्टन है। मतलब मोबाइल फोन उठा लिया, मतलब लोग पहुंच गए उस तक। वाह, ये तो बहुत बड़ी या बात है। यार, ऐसा नहीं कि एंड इमरान धोनी, खान जो वाइस कैप्टन जो है उसको बुला ले, कैन नॉट हैपन। नहीं नहीं नहीं, नहीं। ऐसा नहीं कर सकते यार, कैप्टन इज और वो भाई। देखो, धोनी छठ पूजा छोड़ के आ रहा है वो काम करने। तो उसको भी वो थोड़ा अप्रिशिएट करना चाहिए। क्या कर रहा है? बिकॉज मैं श्योर हूँ कि धोनी जैसा बंदा है वो तो भाई बुलाने पे भी नहीं आएगा, मतलब उसको आईसीसी ने बोला होगा या फिर कोई किसी ने बहुत बड़े आदमी ने बोला होगा तो ही वो आ रहा होगा, नहीं तो हमेशा, हमेशा, अमित हमेशा के शाह। फोन आया। हाँ, हाँ, अमित नहीं, शाह तो। नहीं तो वो ही डजंट वांट टू कल टेक द एक और बहुत लाइमलाइट। फनी वीडियो आया। धोनी वॉज विजिटिंग हिज एंसेस्ट्रल विलेज, ठीक है, तो हाँ, रास्ता पूछ रहा था ये उत्तराखंड। कहाँ जाना है। तो लोग समझ नहीं पा रहे, उसने बोला लो यार पहले चाय पी लेते हैं बाद में देखेंगे। तो लोग बोले कि मैं भी हर सिचुएशन में पहले चाय पी लेते हैं बाद में देखेंगे। हम्म, काफी कौन सही धोनी था ने वो। बोला ये? धोनी ने बोला? धोनी बोला अरे पहले भाई चाय ये पी तो लेते हैं बाद अपना में भाई जाएंगे। है। वो है वो है। धोनी इज हम्म, ऑन डिफरेंट लेवल। तो आज तो सब लोग हैं, सारा भी है। हम्म, श्रेयांश भाई बोल रहे थे कि रोका करा देते हैं सारा और गिल का, तो हम्म। पता नहीं चल रही है कुछ बात। श्रेयांश भाई गए नहीं श्रेयस भाई तो स्टेडियम लगता है। अहमदाबाद, अहमदाबाद में है ना। हाँ, श्रेयांश भाई अहमदाबाद। इन हाउ अहमदाबाद। आर द वाइब्स इन अहमदाबाद? एंड श्रेयांश भाई ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे सारा तेंदुलकर को अपने नए स्टार्टअप का। श्रेयांश भाई आप सही में अहमदाबाद में हो? ज्वाइन तो कर लिया है लेकिन कुछ नहीं नहीं सुनाई नहीं नहीं। यार, अहमदाबाद में नहीं। नहीं इतनी नहीं, भीड़ हो गई कोटा कि में, नेट स्लो हो गया लगता है वहां पे। एनीवेज, लेट्स सी। कोटा में ही है। अभी हमारा प्लान है साथ में मैच देखने का, तो अच्छा लेट्स सी। अच्छा अरे वो समृद्धि और क्रिश दोनों की तबीयत खराब हो गई है। अच्छा अच्छा। अच्छा, ठंड हो गई यहाँ पे थोड़ी आप इसलिए। कुछ बोलना चाहते हो? हम ठीक है, लोग एक्चुअली लास्ट 40 मिनट से बकवास कर रहे हैं, तो अगर आपको कुछ बोलना है तो आप बोल लो। या वी आर डन विद आवर पॉइंट्स। नहीं नहीं, लेट्स कीप माय बकवास रिजर्व टिल नाउ, और जीतने की बात ही करेंगे सारी। मुझे आज याद आ रहा है 2011 का वो रात, जब हमने भौकाल मचाया था कॉलेज में साथ में, और भाई दूध कैसे उस वूध, दिन भाई क्या हुआ तो था मुझे याद है। एक ट्रक था जिसमें दूध के पैकेट्स थे, मिल्क मिल्क पैकेट्स थे। भाई दूध की नदी बह गई थी भाई, लोगों ने दूध के पैकेट वैकेट फाड़ दिए। मतलब मैंने बोला भाई ये मतलब क्या हो गया? भाई गर्ल्स हॉस्टल के गेट पे लोग जाके वो मार रहे हैं, चम्मच वम्मच मार रहे हैं, मतलब अलग ही भौकाल मचाया था श्रेयांश भाई। ऐसा ऐसा हमारा 2007 T20 वर्ल्ड कप में हुआ था। अनएक्सपेक्टेडली जीत गए, ठीक है, हमें तो लगा छक्का जाएगा, वो शीशान नीचे खड़ा हुआ था। उसके बाद कॉलेज हॉस्टल मैस के अंदर जो बवंडर मचा है, सारे डायरेक्टर ने दूसरे दिन सबको बुला के लाइन में खड़ा, सबसे पैसे लिए हैं जो चीजें टूटी हैं उसकी, लाइन में खड़ा करके। तो वो है, रेड इट्स नहीं क्रेजी। हमारा इसलिए तो श्रेयांश भाई अगर जीत गई इंडिया तो सेलिब्रेशन कहाँ होता है कोटा के अंदर, आप पता करके रख लेना। रिवर फ्रंट तोड़ने चल चलते हैं। हाँ, रिवर फ्रंट चलेंगे खुलवा के। बंद हो टेम्पल जाएगा गार्डन में। सब एक्चुअली। हम्म। वैसे आज ऑक्सी पार्क में बहुत बड़ी स्क्रीनिंग हो रही है, 5,000 लोगों अरे, की एक साथ, एम्फी थिएटर में। बहुत शानदार, अच्छा, बहुत ही शानदार एम्फी थिएटर। बढ़िया बढ़िया, फिर तो चलो देखते हैं कैसा माहौल रहता है, फिर वहां पे भी जा सकते हैं सेंट्रल उस दिन पार्क तो में। लास्ट वाले वर्ल्ड कप में तो 2 विकेट होने के बाद मैं 1 डेढ़ घंटे के लिए अपने कमरे में चला गया था टीवी रूम से, मुझे याद है। 18 या 31 तक 2 हो गए थे, उसके बाद मुझे बहुत भी ही। याद है जब 31 for 2 हो गया था, तो मेरे दो दोस्त थे जो सचिन के बहुत बड़े फैंस थे, तो उन्होंने उन्होंने एक्चुअली देखना बंद कर दिया था, और वो लोग कोने में जाके बैठ गए थे,
बोले थे हो गया मैच यार। फिर जैसे जैसे मतलब विराट और गंभीर का पार्टनरशिप लगा, तो उनको थोड़ा लोगों ने बोला आओ आओ देखो अभी भी चांस है। फिर ऑब्वियसली विराट कोहली के आउट होने के बाद भी वो लोग थोड़ा ऐसे नेगेटिव थे कि नहीं होगा, बट ऑब्वियसली फिर धोनी और गंभीर के बीच में जो पार्टनरशिप हुई, तो बट उसमें यार जहीर खान ने जो बॉलिंग की थी और जो स्पेल डाला था, फील्डिंग, हाँ जो फील्डिंग, फील्डिंग हुई थी फर्स्ट 10 ओवर्स। भाई सहवाग ने आज तक वैसा कैच नहीं पकड़ा होगा जैसे उस दिन उपुल तरंगा को का कैच पकड़ा था उसने, पूरा स्लिप में डाइव मार के। तो ऐसी फील्डिंग की थी, तो वैसी नहीं वो फील्डिंग होता ही है अगर यार, वो हम्म, आज तो बॉडीज विल बी ऑन द लाइन, और आज तो राहुल द्रविड़ को शाहरुख खान वाली स्पीच देनी पड़ेगी कि हम्म, भैया मैंने 70 इतनी में गालियां नहीं। खाई है, मैंने इतनी गालियां खाई है यस। लास्ट 2 सालों अरे से। यार श्रेयांश हम्म, भाई, आपने बहुत अच्छा पॉइंट पकड़ा। मैं एक्चुअली बात करना चाह रहा था राहुल द्रविड़ के ऊपर भी, जो हमने हम्म, किसी ने भी नहीं करी राहुल द्रविड़ के ऊपर। हाँ तो सब उसको राहुल गाली द्रविड़ देने का आ जाते सीन, हैं हाँ बस। राहुल द्रविड़ को गाली देने तो हम आ गए थे, दैट्स टू अप्रिशिएट हिम। हम हम्म, यही बोल रहे थे कि राहुल द्रविड़ कर क्या रहा है, हम लोगों को किसी को स्ट्रेटेजी समझ में नहीं आ रही थी कि व्हाट इज द, मतलब प्लान क्या है इसका। तो नाउ व्हेन हम्म, एवरीथिंग हैज फॉलन इन प्लेस, रिजल्ट हम्म, इमैटेरियल, राहुल द्रविड़ को थोड़ा अप्रिशिएट करना जरूरी है कि ही स्टक विद हिज चॉइसेस, कि हम्म, भाई यही लोग खेलेंगे, अब इनको हम्म, फिट करो चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे पास इनका रिप्लेसमेंट नहीं है। हाँ ऋषभ पंत एक्सीडेंट मैं वाज आप लाइक, बिल्कुल सही बात क्या बोल वो, रहे हो, मतलब कि ऐसा भी हो सकता था कि ही कुड हैव सेड ये लोग इंजर्ड है, अभी ये लोग को फॉर्म में आना हम्म है, लेट्स लुक एट सम हम्म अदर ऑप्शन या फिर कुछ और देखते हैं। बट ही वाज लाइक हम्म, नो, मुझे श्रेयस और केएल और बुमराह यही तीन चाहिए तो चाहिए, ये तीनों जो हम्म। फिटनेस इश्यूज के थ्रू जा रहे थे। तो दैट वाज अ गुड तो कॉल टेकन बाय हिम आई थिंक। या ये और उसके अलावा द द वे दे हैव प्लान द रोटेशन, कि भाई यहाँ पे नहीं खेलेगा, यहाँ पे खेलेगा, एंड ऑल दो सिनेरियो, एवरीवन इन क्रिकेट फ्रेटर्निटी क्वेश्चनिंग राहुल द्रविड़ की भाई इसका क्या है, क्रिकेट एक्यूमेन है या नहीं है, इससे बढ़िया तो रवि शास्त्री था, किसी और को कोच बना देते। आई थिंक तो गौरव दीज, ने बोला था कि मेरी बेटी इससे थोड़ी शादी करवाना है मुझे, कि ये नाइस गाई है तो क्या मैं क्या करूं, वो उसने एक बार बोला था। तो मैं हाँ, बोला तो म- तो हाँ these आर द काइंड ऑफ थिंग अभी, एंड वी मस्ट नॉट फॉरगेट। Okay. So as I was saying ki Rahul Dravid appreciation that we need to do. We must not forget that Rahul Dravid was the vice captain in 2003 heartbreak and captain in 2007 humiliation. Stakes are very high for him. He has not won a World Cup unlike Sachin and Sehwag, and he has a chance uh, to redeem himself. And I mean, everyone loves a good नहीं redemption एक्चुअली मैं बताता हूँ story. ना क्या बोल रहे थे लोग द्रविड़ के बारे में। एक तो बोल रहे थे कि इज जस्ट अ नाइस गाय, रवि शास्त्री से हम के एरा से हम निकले थे बाहर, तो लेट्स अंडरस्टैंड डैट कि रवि शास्त्री मुंहफट है थोड़ा, बड़े बड़े डायलॉग्स बोल देता है कैमरा पे। जबकि जो लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे क्योंकि इंडिया एक टेस्ट सीरीज डोमिनेशन के एरा से आ रही थी, जब विराट कोहली के अंडर काफी टेस्ट मैच डोमिनेशन हुआ। तो विराट और रवि शास्त्री देवर सीन एज यू नो द, जैसे मुन्ना भाई एमबीबीएस में मुन्ना भाई और सर्किट थे, उस तरह का उनको देखा जा रहा था कि रवि शास्त्री तो मुन्ना भाई है और विराट सर्किट, और इन दोनों ने मिलके मतलब इनका एक केमिस्ट्री है और ये दोनों के बीच में इतना रिस्पेक्ट है। इनफैक्ट विराट कोहली ने कुंबले को हटा दिया था, हु वाज अनदर काइंड ऑफ पर्सनालिटी लाइक द्रविड, मतलब कि काइंड ऑफ अ सिमिलर सेंसिबल पर्सन विथ लॉट ऑफ डेटा, उस चीज पे वो भी जाता था। तो अब वहां पे क्या हुआ कि भाई द्रविड को हमने तो पूरा चांस ही नहीं दिया ना कभी। हम यही बोलते रहे कि द्रविड तो कुछ नहीं जीत सकता, द्रविड क्या करेगा, अंडर 19 के लिए ठीक है, ए टीम के लिए ठीक है, प्लेयर्स को डेवलप करने के लिए ठीक है, बट मेन टीम की कैप्टनसी क्यों दे दी, नेहरा को लाओ, फिर किसको लाओ मतलब कोई भी जो इंग्लिश कोच था, ट्रेवर बिल, इसको लाओ, सबकी बातें हो रही थी कि इसको लाओ उसको लाओ, गैरी कर्स्टन के साथ ही जीते थे हम लोग। तो इतना जो क्रिटिसिज्म हुआ द्रविड का, और बहुत ज्यादा हमने क्रिटिसाइज किया, हमने भी किया, मतलब मैं सबको नहीं बोल रहा, हम लोग हमने भी किया है। बट रोहित शर्मा के साथ जो उसके आई थिंक रोहित शर्मा और उस पे पूरा फेथ था, मतलब कि उसका, और उसने रोहित शर्मा को बोला तुम डिसीजंस लो,
और वो ये अंडरस्टैंड करता है जस्ट लाइक गैरी कर्स्टन कि भाई मेरा जगह बिहाइंड द सीन्स है, मैं कभी इन फ्रंट नहीं आऊंगा, मैं कभी डायलॉग्स नहीं बोलूंगा। आई एम नॉट सेइंग कि रवि शास्त्री अच्छा नहीं था, रवि शास्त्री भी हेल्प किया इंडिया को एक फेज में जीतने के लिए, बट राहुल द्रविड़ मतलब ऐसा वर्ल्ड कप डोमिनेशन हमें, इंडियन टीम हमेशा नंबर 1 रही, हमेशा अच्छी थी, बट ऐसा वर्ल्ड कप डोमिनेशन हमें नहीं देखने को मिला। मतलब कि इवन इन नॉकआउट्स हम इनविंसिबल लग रहे हैं, अभी तक तो हम इनविंसिबल नहीं लग रहे हैं, तो लॉट ऑफ ये तो क्रेडिट बात गोस टू सही हिम। है। आई हैव नेवर सीन इंडियन टीम इन दिस पोजीशन की वो हाँ। ऑरा वाली बात होती है ना कि व्हेन दे आर पुटिंग फुट ऑन द फील्ड, सामने वाली टीम की सारी प्लानिंग कर रही है कि बोले ये ऐसा हुआ तो क्या करेंगे। सामने अपोजिशन को दे नीड प्लान ए बी सी डी सारे जस्ट टू हैव बी competing इन द मैच एंड ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि इंडिया मिस्टेक करे। वो खुद के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है उनका, ये है कि इंडिया मिस्टेक करे। तो जहां राहुल द्रविड़ का तो भाई मैं पिछले 2-3 दिन से ये सोच रहा था एंड देन दिस होल थिंग स्टार्टेड कि वो चक दे इंडिया वाली रिडेम्पशन स्टोरी आर्क एंड एवरीथिंग। आई सेड दैट यस, लोगों को बोलना चाहिए कि एंड इनफैक्ट कल रोहित शर्मा ने भी राहुल द्रविड़ के लिए बोला कि बोले जो मेरा प्लेइंग स्टाइल है और जो राहुल द्रविड़ का प्लेइंग स्टाइल था, दोज आर स्टार्कली अपोजिट। तो एक कोच का फेथ मिलना कि नहीं यार तुम्हारी सोच सही है, यू गो अहेड, हम लोगों को रोल डिफाइन करेंगे कि कैसे करना है, हाउ यू वांट टू टेक इट, मैं अपना स्टाइल नहीं और करना चाहता। और भाई इंडियन फैंस इतने, मतलब कि कुछ इंडियन फैंस इतने बेकार है ना कि अभी भी राहुल द्रविड़ को इन चीजों से एसोसिएट किया जाता है कि 2007 वर्ल्ड कप में हम हार गए, 90 मतलब कि जो 194 पे सचिन को डिक्लेरेशन करवा दिया। दे हैव नॉट सीन कि भाई उसने कितने ग्रेट नॉक्स खेले हैं, मतलब कि तुम ऐसे उसको करते हो ना कि एक दो जब चीजें लेके नहीं बैठना चाहिए। ट्रोलिंग मतलब कि शुड बी स्टॉप्ड ऑफ सच अ लेजेंडरी पर्सनालिटी फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर वो कितना भी मतलब क्या भी करे, जो भी करे, उसने बहुत कुछ किया है। एंड हम एंड तो नॉर्मल शिखर फैंस वन हैं, मोर हम थिंग, अगर इंडिया इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई तब भी ट्रोल होगा राहुल द्रविड़ इन सब चीजों के लिए हमेशा। हाँ हाँ हाँ। वो अभी वो आया था ना कि सुना रचिन है। अगर 194 पे है तो वो शायद डिक्लेयर कर देगा, क्योंकि वो राहुल द्रविड़ के एंगल से सोचेगा। ऑन द हाँ अदर विच इज साइड ये क्रेजी। ऑस्ट्रेलिया का कोच कौन है, मेरे को तो पता भी नहीं है। एंड्रू सो मैकडोनाल्ड। सो ऑस्ट्रेलिया का कोच है एंड्रयू मैकडोनल्ड। एंड्रयू मैकडोनल्ड इज ऑस्ट्रेलिया का कोच, और जॉर्ज बेली इज द सिलेक्टर। तो ऑस्ट्रेलिया का ऐसा होता है कि सिलेक्टर ऑलवेज ट्रेवल्स विद द टीम। अभी ये फिलोसॉफी क्या है मुझे एग्जैक्टली समझ नहीं आई, बट तो जॉर्ज बेली का भी बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, और ऑब्वियसली एंड्रयू मैकडोनल्ड तो एक बैक बिहाइंड द सीन्स काइंड ऑफ फिगर है उसका। ज्यादा कुछ उसने मतलब आफ्टर जस्टिन लैंगर लेफ्ट तो वो चाहते थे कि कोई ऐसा बंदा ना हो जो पैट कमिंस पे इम्पोज करे या फिर इनको डांटे या फिर इनको कुछ भी बोले, मतलब कि हाँ, उनको वो स्टाइल पसंद नहीं आई थी ना जस्टिन लैंगर वाली, जो हाँ स्टिक हाँ लेके पीछे हाँ, दौड़ता था। राइट 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 राइट। देखते हैं, तो आई थिंक पैट कमिंस इज द लीडर इन दैट ग्रुप, मतलब ही इज अ सर्टिफाइड लीडर, एंड स्टीव स्मिथ इज द वाइस कैप्टन। तो ये दोनों मतलब कि है मतलब मेजरली। एक मिनट, बाकी लोगों का राहुल द्रविड़ के लिए एनी थिंग बिफोर वी ये डिविएट हो जाए। नहीं बाकी यार एज नहीं, मेरा तो ये हाँ। मानना है, देखो एज अ कोच उसने जो वर्ल्ड कप में किया है वो मतलब नो डाउट वर्ल्ड कप के पहले हम लोग भी बोल रहे थे बहुत कोई कि बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर रहा है, गलत टाइम पे कर रहा है। बट वो उसकी मजबूरी थी क्योंकि पंत इंजर्ड हो गया था, श्रेयस अय्यर इंजर्ड हो गए थे उस टाइम पे। बट वो उसका रिजल्ट अब हमें देखने को मिला है, वो जो उसने एक्सपेरिमेंट किया उस पर उसने वर्ल्ड कप में स्ट्रिक किया, और उसका रिजल्ट अब हमें देखने को मिल रहा है। दैट इज गुड थिंग। राइट, ऑन दैट पॉइंट ओनली मेरा एक पॉइंट है, लाइक बिफोर एनीवन गोस, कि दिस रिजल्ट ऑफ फाइनल विल नॉट डिफाइन हिम एज अ कोच, हिज टेन्योर एज अ कोच। What will define him was his tenacity to stuck with choice of players जो उसने आइडेंटिफाई कर लिए थे, उन प्लेयर्स का रोटेशन ड्यूरिंग देयर इंजरी, एंड देन ensuring every first choice player is in peak form is sensational man management। मतलब नहीं मैं आपको एज एन एक चीज बताता हूँ देवांशु भाई, तो 2015 वर्ल्ड कप में भी शायद रवि शास्त्री कोच था, और 2019 में भी रवि शास्त्री कोच था, राइट। तो राइट राइट राइट। ये दोनों वर्ल्ड कप्स में रवि शास्त्री कोच था। 4 साल 2015 में, तो नहीं होगा यार, 8 साल पहले तो नहीं होगा, नहीं नहीं इम्पॉसिबल। 15 He में भी was था head वो, of 15 में he भी was था वो। director of cricket, he was आई वॉज director of डायरेक्टर ऑफ cricket। क्रिकेट। 4 साल में इनको एक नंबर 4 नहीं मिला। अंबती रायडू अच्छा खेल रहा था, जो भी है, इन्होंने नंबर 4 फाइनलाइज नहीं किया।
Whereas look at Dravid sticking on to Shreyas Iyer even through injuries, bad form. सब लोग बोल रहे थे ड्रॉप करो, इसको खिला लो, उसको खिला लो, just sticking शॉर्ट with बॉल नहीं Shreyas Iyer. खेलता है। हाँ, तो that shows मतलब कि that shows the courage of Dravid. मतलब कि भाई बंदा courageous है, इसीलिए तो बड़े बड़े बॉलर्स उसको 150 kph करके भी डरते थे उससे, कि भाई वो वॉल है, मतलब एक तरह से ही इज द वॉल. that's the like. हाँ, anyway, आप नहीं लोग जो कुछ अगर और कोई बोलना चाहते हैं आज इसमें. एंटरटेनमेंट के लिए कुणाल क्या है? प्रतीक आज दुआ लिपा परफॉर्म कर रही है क्या आज? इस अरे मैच से नहीं, पहले डुअली क्या परफॉर्म कर नहीं रही कर है? रही है, दैट्स अ नहीं कर रूमर रही है, थिंग. हर होप डुअली पर इज नॉट ओके, देयर. चलो अब ठीक है, ये मैं डायरेक्ट कुछ फिर मैच वियर्ड है. के नहीं, पहले तो एक एयरफोर्स का वो है, एयर शो है, इंडियन एयरफोर्स एक हाँ एयर शो कर रही है. हाँ एयर शो भी है, बहुत सारी चीजें उन्होंने प्लान करके रखी. इट्स लाइक अ प्रॉब्लम क्या है पता है, फुल डे ऑफ टॉस के इवेंट्स. बाद एयर शो है, मतलब कि इट्स लिटिल वियर्ड. यार आफ्टर नेशनल एंथम, आफ्टर नेशनल एंथम। आफ्टर नेशनल अच्छा तब तो हाँ बहुत लेट हो हाँ गया, मतलब 1:50 को नहीं होगा. नहीं तो बट यार 2 मिनट का है वो। मैक्सवेल के रियान ईयर्स भाई मैक्सवेल अहमदाबाद के गए तो कि मैच नहीं ईयर्स से हम गए? लोग देख पाएंगे. एक मिनट अरे शिखर लेकिन नहीं गए, प्रॉब्लम नहीं ये है गए. कि अगर इतना हाँ लेट है तो मैक्सवेल के लिए प्रॉब्लम होगा ना, उसके ईयर्स एडजस्ट नहीं कर पाएंगे एयरफोर्स के उसके बाद भाई, वो लाइट शो जो रखा है ना, वो सेकेंड इनिंग्स के सेकंड ड्रिंक्स ब्रेक में रखा है, लाइट शो. और मुझे क्यों ऐसा फीलिंग आ रहा है उससे मैक्सवेल खेल रहा होगा. और मैक्सवेल ने तो बोल दिया है कि भाई मुझे तो बहुत प्रॉब्लम है इस चीज से. तो मुझे लगता है इन्होंने जानबूझ के रखा है वो लाइट शो, कि मैक्सवेल भाई बैटिंग कर स्मिथ रहा को हो. भी डिस्टर्ब वर्टिगो हो करने के लिए. सकता है भाई, स्मिथ को अरे भी हर मैच में वर्टिगो हो उसी टाइम सकता है होता सब है, देख के। हर मैच में उसी टाइम पे होता है। हाँ, बट हाँ हर कुछ मैच में मैचेस में होती नहीं हो बात रहे थे, मतलब मैंने जो 2-3 मैचेस देखे उसमें नहीं हुआ ड्रिंक्स ब्रेक में. आई थिंक हो सकता है टीम्स ने रिक्वेस्ट किया हो कि भाई ड्रिंक्स ब्रेक में ना करो, क्योंकि मैंने दोनों ऑस्ट्रेलिया के मैचेस देखे, दोनों में नहीं हुए. तो मुझे लगता है मे अच्छा बी नहीं है. ऑस्ट्रेलिया इज नॉट हैप्पी विद दैट लाइट शो जो भी है. बट आज तो आज तो होगा, होगा अब तो लेकिन अनाउंस कर दिया है उन्होंने, तो हम्म होगा ही होगा. और लेट्स सी हाउ हम्म दैट इम्पैक्ट्स मैक्सवेल और इंडिया, जो भी मतलब बैटिंग स्मिथ को करने वाला वर्टिगो ना हो जाए भाई फिर से। नहीं 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 यार है. लेट्स ये नॉट ठीक है, ग्राउंड. लेट्स नॉट मेक फन ऑफ एनीवन इलनेस नॉट उसका येट ठीक है एटलीस्ट. हाँ. यार हाँ हाँ, तो बट हाँ, हमने काफी कुछ कवर कर लिया आई थिंक आज के, मतलब 2 हम्म, वीडियोस में मिला के. ऑब्वियसली यार वी टॉक्ड अबाउट स्काई, वी टॉक्ड अबाउट. तो अभी मैं राहुल मतलब कि द्रविड़ गेम सिचुएशन के बारे में एक बार आ जाता हूँ कि मान लो अभी इंडिया, वार्नर और हेड आर जस्ट गोइंग, मतलब ऑल गन्स, मतलब ऐसा हो गया है कि 20 ओवर में 110 120 बन गए हैं, 130 बन गए हैं, मतलब दे आर गोइंग वेरी अगर वेल. वो दोनों खेलेंगे तो 180 बन जाएंगे 20 ओवर में भाई। हाँ, 180 हाँ बन गए 200 हैं. बन जाए हम्म। हाँ, तो फिर इंडिया को कोई क्या करना चाहिए उस टाइम, मतलब कि व्हाट शुड बी इंडिया स्ट्रेटेजी अगर विराट ऐसा कोहली कुछ शुड बॉल। विराट या विराट कोहली, रोहित शर्मा शुड बोल उसके बाद. या मतलब भाई उसके बाद नहीं मतलब ऐसा गिव अप हो जाएगा कि मतलब कोई नहीं कोई. एक्चुअली में इंडिया को MS धोनी की एक स्ट्रेटेजी होती है ऐसी सिचुएशन में, ही स्लोज डाउन द गेम। वो हम्म, बहुत टाइम वेस्ट करता है बीच में फील्डिंग सेट करने में, बॉलर से बात करके वो हम्म, बैट्समैन को वेट करवाता है नेक्स्ट बॉल के लिए। सो दीज आर हम्म, द काइंड ऑफ टैक्टिक्स दैट इंडिया शुड गो विद। पूरा गेम को स्लो कर दो। हम्म, हम्म. अच्छा, सो पहले दैट इज एनीवन एल्स वांट्स टू कमेंट ऑन पहले तो दिस? मैं तो बोल रहा हूँ, पहले तो रिग्रेट करना चाहिए कि अश्विन को नहीं खिलाने का उस सिचुएशन में भी। वो टीम हम ऐसे नहीं रिग्रेट बना पाई कि करना अश्विन चाहिए की जगह बन पाई। पहले, मतलब कि और इंडिया को बैट बॉल सब कुछ छोड़ के हमें बैठ के पहले रिग्रेट करना चाहिए. कि अश्विन को नहीं खिला पाए। मतलब उस समय अगर जैसे 20 ओवर में 200 रन लग गए तो सब कुछ छोड़, पहले बैठ के रिग्रेट करो. यार अश्विन नहीं आई खेल मीन रहे। नितिन यू उस हैव डन ये सही पॉइंट था भाई, ये सही तुमने पॉइंट. यू 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 हैव टच द पेंडोरा बॉक्स। इस अरे पूरी भाई, तुमने 15 क्या इस बात पूरी कर दी 15 अब तो भाई. इस पूरे 15 की स्क्वाड के अंदर द बेस्ट रिकॉर्ड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलियंस इज ऑफ अश्विन। अश्विन ठीक, अब प्रॉब्लम ये है कि अश्विन खेल नहीं सकता। दैट्स द सिनेरियो कि वो खेल ही नहीं सकता अनलेस कोई कॉन्कशन हो जाए या फिर सूर्या को बोले कि भाई तू बैठ, आज तो अश्विन खेलेगा। अश्विन को तो नहीं क्योंकि खिलाएंगे बॉलर यार। तो एक जना ड्रॉप नहीं होगा हम्म, चाहे कुछ भी हो जाए, हम्म, पहाड़ इधर से उधर गिर जाए। तो अच्छा. अश्विन बेचारा इज ट्रूली अनलकी कि वो हम्म, हार्दिक गया 2 प्लेयर को साथ में ले गया वो अपने साथ। वो हम्म, सिचुएशन होगी नहीं शार्दुल सभी एंड अनलकी है, बहुत अच्छे प्लेयर्स है पर अनफॉर्चुनेटली ये नहीं खेल पा रहे हैं। शार्दुल ठाकुर, ईशान किशन, ये लोगों ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है लेटली। हाँ, यस यस यस
अभी अच्छा क्या अभी कर सकते गेम हैं? सिचुएशन प्रसिद्ध 2 में कृष्णा का दे रहा भाई, हूँ। प्रसिद्ध कृष्णा का यहाँ पे 12 for 4 है ओडीआई में, अहमदाबाद में वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 12 रन देके 4 विकेट लिए थे उसने, 10 ओवर में शायद 12 रन दिए थे, किसका 8 ओवर किसने? में शायद, 8 ओवर में। किसका? प्रसिद्ध कृष्णा ने यहाँ पे प्रसिद्ध 12 कृष्णा। रन देके प्रसिद्ध 4 कृष्णा। विकेट लिए थे। वाओ। अच्छा जस्ट मेंशनिंग चलो बढ़िया सेकंड है। गेम सिचुएशन, ऑस्ट्रेलिया इज 20 overs 80 for 5. Yeah, more हम्म realistic, more probable. 20 80 overs for 80 for 5 5. उस मैक्सवेल खेल रहे सिचुएशन हैं में और सबसे पहले मैक्सवेल और इंग्लिश खेल रहे हैं, मैक्सवेल और कमिंस खेल रहे हैं, हाँ तो क्या होगा? कमिंस का सबसे 50 पहले पक्का तो है फिर तो। मैक्सवेल डोंट बॉल स्पिन टू मैक्सवेल, गो फॉर फास्ट बॉलर्स। Yeah. अगर ऐसे सिचुएशन है तो बट कुलदीप अच्छा तो आउट ऐसे करता है यार मैक्सवेल को, कुलदीप उसको नहीं अच्छा नहीं, अरे परेशान वो करता है। वो रिवर्स स्वीप और वो सब करता है, वो थोड़ा रिदम बिगाड़ देता है। तो इट्स हाँ बेटर कि आप फास्ट बॉलर के अगेंस्ट जाओ वो और फास्ट एक बॉलर को मेक भी श्योर रिवर्स स्वीप करते हैं, लेकिन हाँ, वो प्रॉब्लम तो नहीं करता है। नहीं But एंड Maxwell is मेक more श्योर likely to get out to fast bowlers, right? उस दिन अफगानिस्तान ने भी ये गलती की थी, स्पिनर से बॉलिंग कराई थी। मेक श्योर कि मैक्सवेल इज फुली हाइड्रेटेड, दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा भाई पता है हम तो अश्विन को नहीं खिलाएंगे, पर पता थोड़ा है ऑस्ट्रेलिया एक्स्ट्रा को आज पानी कैरी पिलाओ को जाके उसको खिला भाई, देना कि चाहिए भाई भाई। कुछ इंजर्ड होके मैं मत बोल रहा मारना हूँ भाई, एटलीस्ट इतना इज्जत रख लेना हमारी। इज्जत रख लो। मैं बोल रहा ठीक हूँ है तुम ऑस्ट्रेलिया को आज ऐसे कैरी को नॉर्मल खिलाना मारो चाहिए कोई भाई। फर्क नहीं पड़ता, बट इंजर्ड होके मत मारना, वो भी फाइनल के दिन 1,30,000 लोग देख रहे हैं नहीं नहीं स्टेडियम नहीं नहीं में, वैसे तो करोड़ों लोग देख रहे हैं। अच्छा भाई वो कैरी बात को मैच, सही खिलाना है चाहिए, भाई। कैरी को। कैरी स्टेबिलिटी लाएगा भाई मिडिल ऑर्डर में उनके। अब कैरी कहाँ से हाँ आएगा भाई? कैरी अब कहाँ आएगा स्टोइनिस ही भाई? नहीं आ कैरी रहा, कहाँ तो से तुम्हें आएगा? कैरी चाहिए भाई अब। प्रतीक कैरीज वो वहां पे एयरपोर्ट पे बैठा हुआ है, वो वेट कर रहा है फ्लाइट के जाने का, बोले मेरे को खिलाएंगे नहीं है। कांटास के फ्लाइट का वेट कर रहे हो। एयरपोर्ट पे पार्ट टाइम जॉब ले लिया क्या उसने, कि जिस दिन आएंगे तब मैं जॉब छोड़ के वापस वो जाऊंगा। टॉम हैंक्स का जो जा ही मूवी नहीं था ना, सकते ना, टर्मिनल, द जा ही नहीं। टर्मिनल, वो एयरपोर्ट में ही अभी रुका हुआ है भाई, वही रह रहा है वो, नहीं और इसलिए तो इंग्लिश नहीं खेल जा रहा है तब सकते से। ना, नहीं नहीं, वो बेचारा इतना बुरी स्थिति है कि जा भी नहीं सकते, क्योंकि 23rd से इनकी 5 मैचों की सीरीज बाकी है। वो उस टाइम भी वो एयरपोर्ट पे ही रहेगा। हाँ। तो उसके अच्छा, साथ तो दिक्कत है। एनी अदर सिचुएशन शिखर, अब इंडिया अगर फर्स्ट बैटिंग कर हाँ रही है तो गेम गिव द सिचुएशन सिचुएशन। 3, रोहित एंड विराट आर बैटिंग एंड इट्स 20 overs 100 for 1। 20 overs में 100 रन बस बने और 1 विकेट गिरा है। और रोहित और विराट, पता नहीं रोहित अगर बैटिंग नहीं, विराट एंड श्रेयस आर बैटिंग, 2 विकेट गिर चुके हैं। हम्म तो क्या करना चाहिए? आई कोहली को थिंक क्या एग्रेसिव जो खेलना चाहिए फॉर द फर्स्ट टाइम? नहीं नहीं भाई, 2 रन नहीं भागो, Kohli should keep 2 playing रन like he has. 2 Yeah. रन भागो। विराट विल नॉट चेंज एनीथिंग, ही विल रन 2 1s and 2s फॉर 20 ओवर्स। उसका गेम बहुत सिंपल है कि भाई इसको ऐसे करना है, और आई थिंक यही रहेगा। दे विल नॉट चेंज एनीथिंग, उनका कोई और गेम है भी नहीं, और दिस इज अ वेरी गुड गेम एक्चुअली। चेज में अच्छा अगर ऐसा हो, कि 100 for 2 हो, हाँ एंड लेट्स से चेजिंग 285 या 288, ठीक, विच थोड़ा 320 कर लेते हैं, 320 है कि हाँ, अगर चेज कर रहे हैं नहीं मैं आ रहा हूँ उस पे, तो मैं आ रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। अच्छा। अभी मेरा सबसे बड़ा डर जो है, अभी मैं वो क्वेश्चन पूछने वाला हूँ जो मेरा सबसे बड़ा डर है। इंडिया इज चेजिंग 350, केएल राहुल इज बैटिंग, ठीक है, एंड along with him स्कोर जडेजा इज बैटिंग, जडेजा एंड केएल राहुल आर बैटिंग, ठीक है, और 200 रन हुए हैं, 30 नहीं हाँ 200 रन हो गए हैं, कुछ 30-35 ओवर में 200 रन हो गए हैं। नाउ इंडिया नीड 180, इंडिया नीड 150 इन 15 overs। केएल राहुल इज 10 of 35 balls, ठीक, उसके बाद क्या होना चाहिए? केएल राहुल इज सबसे प्लेइंग पहले 10 तो of 35 balls, सबसे पहले जडेजा तो इज 10 of 25 balls, 60 बॉल खेल के सबसे 20 पहले रन तो बनाए। सबसे पहले तो संजू मंजू को जडेजा को बिट्स एंड पीसेस प्लेयर बोलना है, उसके बाद उसके बाद भगवान से प्रार्थना करो कि कुछ हो जाए, क्योंकि आई डोंट सी इंडिया विनिंग फ्रॉम दैट पोजीशन। वहां देयर से इज तो नो नहीं वे, जीत रही है फिर। हाँ वहां से तो नहीं जीत, Yeah. In a देयर इज नो final, वे, no chance. नो चांस। मैं तो सबसे पहले इनफैक्ट केएल को जाके इनफैक्ट दिस इज ट्रू फॉर ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो। अगर ऐसी सिचुएशन ऑस्ट्रेलिया के साथ होगी तो ऑस्ट्रेलिया भी नहीं जीत सकती। But they'll have Maxwell, right? नहीं नहीं ठीक है यार,
कोई भी हो, इट्स नॉट तो पॉसिबल। अपने पास स्काई है, अपने पास भी अपना भी हमारे स्काई पास है। भी बॉलर है यार। जब वो बुमराह बॉलिंग करने आता है डेथ ओवर में, वो अलग ही सिचुएशन होती है। वो दैट्स अ वेरी डिफरेंट सिनेरियो। भाई शामी को आज अगर विनिंग रन हिट करना हो तो क्या लगता है वो हिट कर पाएगा? विनिंग रन कर लेगा? हाँ, विनिंग रन तो कर लेगा, विनिंग रन तो कर लेगा, विनिंग रन कर विनिंग रन लेगा? तो कर सकता है, विनिंग रन तो कर अच्छा, सकता है। विनिंग लेकिन रन तो कर लेगा, बट केएल की आज बैटिंग नहीं आनी चाहिए केएल प्रेशर की आज सिचुएशन बैटिंग में। नहीं आनी चाहिए। अच्छा, तो ये हम तो यार भाई यहाँ पे श्रेयस स्काई भाई की बैटिंग की उम्मीद कर रहे हैं भाई। 43rd ओवर में भी इंडिया वाले स्काई स्काई को नहीं भेजते, केएल को भेजते। तो हम तो स्काई की बैटिंग की बात कर रहे हैं, आप बोल केएल रहे हो केएल की की बैटिंग नहीं आनी चाहिए। की केएल की बैटिंग नहीं आएगी केएल तो की स्काई की बैटिंग बैटिंग आएगी ही नहीं। केएल की बैटिंग हाँ प्रेशर सिचुएशन में नहीं आनी चाहिए कि 20 पर 3 हो गए वहां पे, वो हाँ, तुरंत हो जाएगा। वैसे ऐसे 43rd ओवर में आ रहा है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि तो प्रेशर नहीं है ना। नहीं यार, फर्स्ट मैच में उसकी बैटिंग यार 2 for 3 पर आ गई थी केएल हम्म। की। ही प्लेड वेल, नहीं, ऐसा वो कोई लीग उसने मैच सिचुएशन बेकार तो वो नहीं खेला बहुत था। सही है, मतलब देयर इज नो डाउट। लीग तो मैच अगर का है। वैसे आ रहा है तो ठीक है। एनीवेज, भाई अगर नेक्स्ट 43rd सिचुएशन। ओवर में केएल आ रहा है और जिस हिसाब से रोहित कोहली और ये खेल रहे हैं, तो फिर सेकंड इनिंग्स देखने की भी जरूरत नहीं है। फिर तो मान के चलो इंडिया 325-30 प्लस ही बनेगी। अगर 43rd ओवर में केएल की बैटिंग आ रही है तो इंडिया ऑब्वियसली 250 के आसपास ही होगी मिनिमम। अच्छा, और स्काई की बैटिंग कब आनी चाहिए आपके हिसाब से? 49th फिर ओवर? तो कभी भी आएगा। नहीं, फिर तो अच्छा, कभी भी आए ना भाई, क्योंकि फिर तो 20 बॉल में 40 तो केएल भी बना ही लेगा, तो हो सकता है नहीं आए उसकी। नहीं आए। अच्छा, नहीं मतलब आउट थोड़ी होगा, फिर तो केएल अपना फिनिशिंग टच दे ही नहीं देगा। आउट तो 10 नहीं बॉल होगा में केएल, 10। वो तो मैं श्योर हूँ, आउट नहीं होगा केएल। ठीक है, तो नेक्स्ट गेम सिचुएशन ये है कि ऑस्ट्रेलिया इज ऑफ टू अ फ्लायर इन द चेज। दे आर चेजिंग यार हर सिचुएशन में 300। ऑस्ट्रेलिया ऑफ तो फ्लायर ही है। What is this shit? शिखर को उसी का डर है। This is crazy. चलो ठीक है। तो हाँ 280 का चेज हो रहा है एंड ऑस्ट्रेलिया इज 10 ओवर्स में 80 रन्स। दे आर ऑफ हम्म टू अ फ्लायर। अब बाकी 40 ओवर में 200 रन बनाने हैं ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की फटी पड़ी है क्योंकि उनका कोलैप्स हमेशा होता है। तो नाउ व्हाट शुड बी डन उसके बाद? फर्स्ट ऑफ ऑल फील्डिंग, अमेजिंग फील्डिंग नीड्स टू बी डन। आपको मेक श्योर करना है कि यू डोंट मेक मिस्टेक्स फील्डिंग के अंदर। क्रिएट प्रेशर एंड एज आई सेड, फॉलो MS धोनी फिलोसफी, स्लो डाउन द गेम इन एनी सिचुएशन। गेम को स्लो डाउन कर दो, बैट्समैन को वेट कराओ बॉल के लिए कि बॉल अब आएगी अब आएगी अब आएगी, थोड़ा रिदम तोड़ो। भी यही कर सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। जस्ट फील्ड वेल, फील्डिंग भाई। इज बट आई इम्पोर्टेंट। सिंपल। आई थिंक वो धोनी वाले टाइम पे वो टाइमर नहीं था ओवर लिमिट का कि उतने में आपको ओवर हम्म, कंप्लीट करना है। वो नहीं तो एक्स्ट्रा ठीक फील्ड है, वाला जो रूल है अभी। इंडिया वॉज 3 ओवर्स बिहाइंड इन सेमीफाइनल, कोई या फर्क नहीं पड़ा ना उस चीज का एंड में। तो दैट्स हाउ इट शुड बी। आप फ्यूचर का क्या सोच रहे हो सकता है वो 45 ओवर में ही आउट हो जाए, यू नेवर नो अगर इस टैक्टिक से। तो थोड़ा ऐसा करना पड़ेगा, लेट वेट तो सब राइट कुछ राइट। करना ही पड़ेगा। ठीक है यार, हम वो एक एक्स्ट्रा फील्डर अंदर के साथ भी हम बॉलिंग कर सकते हैं अच्छी, ऐसा कोई इशू नहीं है ये तो ठीक है। और वैसे वो भी रूल का अगर वो इतना 10 इम्पैक्ट ओवर्स नहीं हुआ 80 है रन अभी से, तक इस टूर्नामेंट में, उस रूल का और इतना अगर इम्पैक्ट हुआ नहीं है, ऐसा और कभी 10 विजिबल ओवर्स नहीं हुआ। 80 रन हम्म, है, अगर वो बना भी लेते हैं 10 ओवर के अंदर, तो स्पिन तो 10 ओवर के बाद बॉलिंग करेगी ना। वो 20 ओवर तो 10 ओवर स्टार्टिंग 10 ओवर्स के बाद हम्म, आएंगे। तो वही तो उनकी एक्चुअली हील है। उनका प्रॉब्लम ही वही है कि उनका स्पिन गेम बहुत जबरदस्त खराब है ऑस्ट्रेलिया का। हम्म, देखो क्या करते हैं वो लोग, उनका क्या प्लान है उसको लेके। और एज उनके उसने बोल ही दिया है कि भाई साहब आप हमको लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर नहीं भेजा नेट्स के लिए। अरे तो भाई क्या एक दिन नहीं भेजा तो उससे क्या तुम्हारी टीम की प्रैक्टिस खत्म हो गई क्या? कुछ भी यार, अब दैट्स ये काइंड ऑफ सब सिनेरियो। हाँ, बट वियर्ड है थोड़ा कि क्या उनको नहीं मिला। चाइना मैन और नहीं मिला, आई थिंक चाइना मैन नहीं दिया ही था। हाँ, हियरिंग हाँ फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन टीम विच इज, अभी ये हाँ। कोई और टीम बोले तो फिर भी समझ में आता है व्हाट इज हम्म, ऑस्ट्रेलिया डूइंग वेल। ऑस्ट्रेलिया के हम्म। साथ ऐसा जरूरत नहीं है। अरे एस्टोन एगर को एटलीस्ट नेट बॉलर ही रख लेते, बोलते उसको चाइना मैन थोड़ा डाल दे, थोड़ा लेफ्ट आर्म स्पिन डाल दे। तुम किसी को लेके ही नहीं आए, क्या मतलब यार, छोड़ो। शमसी को आ, रोक लेते कि शमसी रुक जा तू भाई।
श्यामसी वैसे तुम्हें तो हरा दिया है, बट थोड़ा रुक जाओ, हमारी प्रैक्टिस करा दो कुलदीप के लिए। अच्छी बॉल डाली आज मैक्सवेल को तूने, वैसे आज थोड़ा रुक के प्रैक्टिस करा दे यार। अच्छा, तो एनीवे आई थिंक वी हैव बीन हियर टू लॉन्ग, अब हम पागल हो रहे हैं थोड़ा, तो लेट्स क्लोज दिस। ब्रेकफास्ट भी करना है। फाइनल प्रेडिक्शंस इन वन वर्ड, in one sentence from all of you. मैं कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, ओरियो खा रखा है मैंने। ओरियो खाना चाह रहे या नितिन, what are you saying? भाई इंडिया, दूसरे कोई सोच भी नहीं सकते अब तो, नो अदर India ऑप्शन। should win. Yes. तो मैं सिर्फ जिंक्स करने के लिए, मतलब कि मैं बोल रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया शुड विन टुडे, ठीक है? वाह 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 आई थिंक जिंक्स करना भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है लाइफ में, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया शुड विन। कुणाल आर यू देयर? आई डोंट नो इफ इज देयर। तो श्रेयांश भाई, आपके फाइनल प्रेडिक्शंस? इंडिया। इंडिया। ओके okay guys, so that's how we close this preview, and it's the big day. It's 19th of November, और क्या ये दिन हम वैसे ही याद रखेंगे जैसे हमने 25 जून 1983 को याद रखा है, जैसे हमने 2 अप्रैल 2011 को याद रखा है, क्या हम 19 नवंबर 2023 को भी हम वैसे ही याद रखेंगे? तो आज मेरे फादर इन लॉ का बर्थडे भी है। श्रेयांश भाई इतना देर से कुछ बोल नहीं रहे थे, अब मैं वीडियो क्लोज कर रहा हूँ तो कुछ तो बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं श्रेयांश भाई? फादर इन लॉ बोल का रहा हूँ आज बर्थडे मेरे फादर इन लॉ का बर्थडे भी है। अच्छा, आज आपके फादर इन लॉ का बर्थडे है। ग्रेट। चलो, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड कीप डबल फॉलोइंग एंड सेलिब्रेशंस। सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। बाय बाय। बाय।